میں آفس سے باہر نکل رہا تھا، اچانک ایک عورت سامنے آ کھڑی ہوئی، مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، مراد خان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تمہیں میری بد دعا لگے گی، کبھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ میں نے اپنا گریبان اس سے چھڑوایا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ وہ عورت چیخ رہی تھی کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم گناہ گار ہو۔ اس کی آوازوں پر میں ایک دم پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ساری رات جاگتے ہی گزر گئی۔ اگلے روز ہوتے ہی میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ میری ماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی، عمر کا تقاضا تھا یا ابو کی موت کا دکھ، وہ تو بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس جاتے ہی انہیں پورا خواب سنانے لگا۔ انہوں نے میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ چیزیں خوابوں کی حد تک ہوتی ہیں۔ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میں تمہاری کسی اچھے گھر میں شادی کروانا چاہتی ہوں تاکہ تمہارا ذہن ایسی چیزوں سے ہٹ جائے۔ امی نے اگلے ہی دن خالہ کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جس جگہ میرا رشتہ ہوا وہ لوگ بھی ہر طرح سے شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ امی کو لگتا تھا شاید ہم دونوں خوش رہیں گے۔ مہینوں میں ہی ہماری شادی ہو گئی، مگر وہ مجھے بالکل وقت نہ دیتی۔ ایک بات جو نمایاں تھی کہ جس وجہ سے امی نے میری شادی کروائی تھی، وہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا تھا۔ پہلے جو خواب مجھے ہفتے میں 2 یا 3 بار آتا تھا، اب وہی خواب مجھے ہفتے میں 3 یا 4 بار آتا۔ میں اس خواب کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ میں سوچتا، میں نے ایسے کون سا گناہ کیا ہے جس کی سزا اللہ مجھے خواب کی صورت میں دے رہا ہے؟ مجھے اپنے سوال کا جواب کہیں نہ ملتا۔ اکثر میں جب رات کو ڈر کر اٹھتا، میری بیوی بھی خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ مجھے پاگل سمجھنے لگی۔ چند مہینوں میں ہی ڈپریشن میں آ کر میں نے اسے طلاق دے دی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں نفسیاتی مریض بن چکا ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت گھر میں گزر جاتا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری امی میری یہ حالت دیکھ کر پریشان تھیں۔ اکثر میں اپنی پوری رات جاگ کر گزار دیتا۔ امی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں اپنے مسئلوں میں اتنا الجھ گیا کہ اکثر ماں کی حالت پہ غور ہی نہ کر پاتا۔ میں جب امی کے پاس جاتا، امی اپنے کمزور ہاتھ سے کچھ نہ کچھ تسبیح پڑھ کر مجھ پر پھونک دیا کرتی۔ آہستہ آہستہ خوابوں کا دورانیہ کم ہونے لگا۔ ایک دن امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا، بیٹے، میں کمزور ہو چکی ہوں، تم میری اکلوتی اولاد ہو، مجھے اپنے گھر کی خوشیاں دکھا دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ مگر میں ان سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں امی، میں ایک بد دعا کے حصار میں ہوں، میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے اپنا گھر نہ بسایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب کی باری امی نے میرے لیے جو لڑکی ڈھونڈی تھی، وہ انتہائی سادہ اور معصوم طبیعت کی تھی۔ اس کا نام مہانور تھا۔ اسے دیکھ کر پاکیزگی اور اطمینان کا احساس ہوتا تھا۔ نکاح کی تقریب نہایت سادگی سے کی گئی۔ مہانور ایک نہایت عبادت گزار اور نیک دل لڑکی تھی، 5 وقت کی نمازی ہونے کے ساتھ بہترین اخلاق۔ اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ اب مجھے ڈرانے خواب نہیں آتے تھے، مجھے کوئی بد دعا نہیں دیتا تھا۔ میں اسی وجہ سے مہانور جیسی پاک لڑکی کو زندگی میں شامل ہونے پر خوش قسمت سمجھتا تھا۔ میں اور مہانور بے پناہ خوش تھے۔ امی بھی پہلے سے بہتر نظر آنے لگی تھیں۔ مہانور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری زندگی پھر واپس معمول پر آ گئی۔ تقریباً 2 ماہ بعد مہانور نے مجھے زندگی کی سب سے پیاری خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب میں نے امی کو یہ خبر سنائی، ان کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ اب ہمیں انتظار تھا تو بس اس دن کا جب ہم اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں گے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ ایک نرس ہاتھوں میں بچہ اٹھا کر باہر آئی۔ خوشی سے میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ نرس نے بچہ میری جانب کیا اور کہا، معاف کیجیے گا، کچھ مسائل کی وجہ سے ہم آپ کا بچہ نہیں بچا سکے۔ بچے کی طرف بڑھتے ہوئے میرے ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہ تھی، اور وہ خوشی کے آنسو دکھ میں بدل گئے۔ میرا جی چاہا میں چیخ چیخ کر روؤں، مگر اپنے جذبے کو قابو میں رکھا۔ بچے کی تدفین کے چند گھنٹوں بعد میں مہانور سے ملنے گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچے کے بارے میں جان چکی ہے۔ اس حادثے کے بعد مہانور بوجھل سی رہنے لگی۔ امی بھی پہلے کی طرح بیمار ہو گئی تھی۔ میں اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، مگر خوشی میں وہ اچانک خاموش ہو جاتی۔ اس کی خاموشی اور اداسی میرے دل کو کھانے لگتی۔ اس واقعے کو 3 ماہ ہی گزرے تھے
कि महानूर फिर से उम्मीद से हो गई। हम दोनों के चेहरे पर एक बार फिर रौनक आ गई थी। पहले बच्चे की पैदाइश के बाद महानूर कमजोर हो गई थी, मगर दूसरे बच्चे के बाद वो तवाना और तंदुरुस्त थी। अब के बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि कोई पेचीदगी नहीं है, बच्चा खैरियत से हो जाएगा। उसके चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट कायम रहती। 9 महीने पूरे हो गए, पैदाइश का मरहला आन पहुंचा। इस बार भी डॉक्टर की बात सुनते ही मैं लरज कर रह गया। डॉक्टर ने बच्ची का रुख मेरी जानिब किया। माँ का नुमायां अक्स थी। अब के बाद मेरे आंसू मेरे बस में नहीं रहे, ना ही मुझ में हिम्मत थी कि उन्हें रोक पाता। महानूर ने महसूस किया किसी माँ के लिए इससे दर्दनाक लम्हा क्या हो सकता है कि उसकी औलाद उसके हाथों में आने से पहले दम तोड़ जाए। मैंने उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो, अल्लाह जल्द हमें जीती जागती नन्ही सी चांद सौंप देगा, फिर वो उसे हमसे कभी वापस नहीं लेगा। लेकिन इस वक्त तसल्ली का कोई भी लफ्ज महानूर की कैफियत बदलने के लिए कम था। महानूर अब मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। इधर अम्मी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी, वो बोलने से कासिर थीं। एक दिन अचानक जब मैं उनके कमरे में गया तो उनकी आंखें खामोश हो चुकी थीं। अम्मी भी हमें उस दुनिया में अकेला लड़ने के लिए छोड़कर चली गई। महानूर बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। अब के जब अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजने का इशारा दिया तो हम दोनों बहुत डरे हुए थे, कहीं फिर वैसा ही ना हो। डरते डरते वो 9 महीने गुजर गए, मगर पैदाइश के वक्त फिर वही हुआ जिसका डर था। अब मुझे यकीन हो गया कि ये सब उसी ख्वाब का असर है। मैं वाकई किसी बद्दुआ के हिसार में हूँ। डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा अगर चौथी बार महानूर मान न बनी तो उसकी जान को खतरा होगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं महानूर को किसी सूरत खतरे में नहीं डाल सकता था। महानूर को जब डॉक्टर की इस बात का पता चला, उसने अपने चेहरे पे आंसुओं की चादर तान ली। मेरे पास भी खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। घर जाने के बाद मैंने भी महानूर के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। ऐ अल्लाह, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर बैठा हूँ जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। चंद माह गुजरने के बाद फिर से महानूर ने बच्चे की नवीद सुनाई थी। अब की बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। एक रात तहज्जुद के वक्त मैं नफल पढ़कर जैसे ही जाए नमाज से उठा, महानूर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी आंखों में आंसू देखकर बोली, सब ठीक तो है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने उसे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए फिक्रमंद हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे किसी की बद्दुआ लगी है जिसकी वजह से हमारे साथ मुसलसल ये हादसात हो रहे हैं। मुझे डर है कि अब मैं तुम्हें ही ना खो दूं। महानूर ने हैरानगी से मेरी जानब देखा और बोली, कैसी बद्दुआ, आप ये क्या कह रहे हैं? तब मैंने उसे अपने ख्वाब के बारे में बताया। पहले तो वो परेशान हुई, मगर बच्चा ज़ाया करवाने पर वो तैयार नहीं थी। मुझे कहने लगी, अगर आपने बच्चा ज़ाया करवाने की बात की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। इन ख्वाबों से कुछ नहीं होता। वो मेरी खामोशी को देखते हुए बोली, हम घर पर एक कुरान खानी करवा लेते हैं जिससे घर में बरकत आएगी और बच्चे पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। शायद किसी की दुआ हमारे बच्चे को लग जाए। 2 दिन बाद घर पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। बड़ी खूबसूरती से महफिल इख्तिताम पजीर हुई। मोहल्ले की तमाम औरतें अब वापस लौट रही थीं। अचानक मेरी नज़र गेट पर पड़ी। वहाँ एक औरत मोहल्ले की बाकी औरतों के साथ बाहर निकल रही थी। उसकी शक्ल मेरे हवासों पर नक्श हो चुकी थी। मैंने फौरन महानूर से कहा, ये वो औरत है जो मेरे ख्वाब में आती थी। महानूर ने देखा, मगर वो औरत जा चुकी थी। मुराद उसके पीछे भागा, मगर वो गली में कहीं मुड़ चुकी थी। मुझे लगता था कहीं वो औरत मेरी बीवी और बच्चे के साथ कुछ कर ना दे। महानूर ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, आप परेशान ना हो, हम इससे बात करेंगे। आखिर वो चाहती क्या है? यही औरत मेरे बच्चे की मौत की वजह भी बन सकती है और उसकी दुआ से मेरा बच्चा बच भी सकता है। अगले ही रोज महानूर और मैं उस औरत को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। अचानक हमारी नज़र एक बोसीदा सी घर पर पड़ी जिसमें एक औरत गुड़िया को गोद में रखे उससे खेल रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। मैंने महानूर को बताया, ये वही औरत है जो मेरे ख्वाबों में आती है। महानूर और मैं उसके पास गए। महानूर ने पहले उसका हाल पूछा। वो हमें देखकर सहम गई। गुड़िया को अपने सीने से लगा लिया
महानूर ने उससे कहा, ये आपकी है। उस औरत ने महानूर की तरफ देखा और डरते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। तब महानूर ने कहा, मगर ये तो गुड़िया है। वो औरत एकदम गुड़िया को फेंक कर रोने लगी और कहने लगी, हाँ ये तो गुड़िया है, मेरी बेटी तो इस जालिम शख्स ने मार दी। महानूर ने जब पूछा कि किसने, तो उसने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। वो औरत बोली, शादी के 10 साल बाद औलाद नसीब हुई थी, मगर एक दिन अचानक मुझे सब्जी लेने मजबूरन बाहर जाना पड़ा। तब एक साहब बड़ी सी गाड़ी में गुजरा और गाड़ी का कोना मुझे कमर पर लगा। मैं मुंह के बल गिर गई। मेरा बच्चा मर गया। उस जालिम ने एक बार भी मुड़कर मेरी जानिब नहीं देखा था। कह रही थी कि उसके बाद मुझे कभी औलाद नहीं हुई। मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके आंसू अब हिचकियों में बदल चुके थे। मैं उसके कदमों में गिर गया। मैंने कहा, वो मैं ही हूं जिसने तुम्हारे बच्चे की जान ली थी। मैं उस दिन बहुत जल्दी में था। मुझे लगा ज्यादा टक्कर नहीं लगी, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन गाड़ी रोकता तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। मैं उसके सामने हाथ जोड़ रहा था कि मुझे माफ कर दे। कहने लगी, तुम कातिल हो मेरे बच्चे के, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम कातिल हो, दफा हो जाओ मेरे घर से। इतने में महानूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने महानूर की जानिब देखा। उसका चेहरा भी आंसुओं से तर था। उसने औरत के आगे हाथ जोड़े, उससे कहा, अल्लाह की रजा के लिए मेरे शौहर को माफ कर दो। तुमने एक बार औलाद का दुख देखा है, मैं अपने 3 बच्चे खो चुकी हूँ। महानूर की बात सुनकर वो जरा तहम्मुल में आई, मगर उसकी सांसें अभी तक उखड़ी हुई थी। महानूर ने कहा, शायद तुम्हारा दुख मेरे दुख से अभी भी छोटा है। मैं फिर मां बनने वाली हूं। अगर तुमने अभी भी मेरे शौहर को माफ नहीं किया तो इस बार मैं मर जाऊंगी और तुम एक कातिल बन जाओगी। तब वो औरत बोली, मैं एक ही सूरत में माफ कर सकती हूं, ये बच्चा तुम मेरे हवाले करोगी। पहले तो महानूर को इसकी बात अच्छी नहीं लगी, मगर फिर मैंने कहा, ठीक है, ये बच्चा तुम रख लेना। अल्लाह ने अगर उसकी जान बख्श दी है तो हमें और औलाद से भी नवाज देगा। ये सुनकर वो तहम्मुल में आ गई और बोली, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, मगर याद रखना ये बच्चा मेरा होगा। उस वक्त हम दोनों अजीब कश्मकश में घर वापस आ गए। बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता किया था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू थे। महानूर भी बच्चे को देखकर फूले ना समा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, महानूर अब कभी औलाद जैसी नेमत से फैज़याब नहीं हो सकती। मेरे सर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। मैं लरजते कदमों के साथ महानूर के कमरे में गया। उसे डॉक्टर की कही बात बताई। वो भी मेरी बात सुनकर रोने लगी। हम दोनों को शर्त अच्छे से याद थी। हम इससे मुकर नहीं सकते थे। खैर घर वापस गए। हमने उस औरत को अपने पास बुलाया। उसे अपना बच्चा सौंपना चाहा, साथ ही उसे डॉक्टर की कही बात भी बताई। उसने वो बच्चा खुद महानूर की गोद में रख दिया और कहा, यह सिर्फ तुम लोगों का इम्तिहान था, तुम लोग उसमें सुरखरू रहे। मैं ये बच्चा नहीं रख सकती, ये तुम दोनों का ही है। महानूर ने बेटे को सीने से लगा लिया और उस औरत से बोली, अब आप इसकी दूसरी माँ हैं, आप ही इसका ख्याल रखेंगी। वो औरत भी खुशी से मुस्कुरा उठी। अब हम सब एक साथ रहते हैं। हम अपने बच्चे को खुशकिस्मत समझते हैं, क्योंकि उसने एक नहीं 2-2 माँओं की ममता उन्हें वापस लौटा दी है।